Hallelujah. Hallelujah. It is a joy to come to you all once again with the word. वचन लेकर आप लोगों के पास आना फिर एक बार, वो भी बड़े आनंद की बात है। Oh, the mercies of the Lord endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। He is rich in mercy. वो दया का धनी है। He is rich in mercy. The Bible says in the book of Ephesians, he is rich in mercy. बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री में वो दया का धनी है। We think we know so much about God. हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के बारे में बहुत जानते हैं। Early in the morning, बड़े सवेरे if there is a lot of snowfall, कोहरा होगा, ओसगिरी होगी, and if you go to any big mountain, और ऐसे समय में अगर आप कोई बड़े पहाड़ पर जाएंगे, so early morning, बड़े सवेरे it is filled with the snow. जो कोहरे से भरा हुआ, If there is one more small stone beside it, अगर उसके बगल में एक छोटा सा पत्थर भी हो, the small stone also says, वो छोटा सा पत्थर भी कहेगा there is a snow on me. मेरे ऊपर ओस पड़ी है, बर्फ पड़ी है। But how can both be the same? लेकिन दोनों एक कैसे हो सकते हैं? This is a small stone, ये तो छोटा सा पत्थर है, but a big mountain लेकिन एक बड़ा पत्थर, is a bigger one. वो बड़ा है। There is a little snow on थोड़ा the सा small stone, छोटे पत्थर पर थोड़ा सा बर्फ जमा हुआ है, but on that big mountain, लेकिन उस बड़े पहाड़ पर सोचो, or you take Himalayas, या फिर उसको वैसे ही लो, huge mountains, वो बहुत बड़ा पर्वत that is filled with snow. जो बर्फ से ढका हुआ, There is a difference between all these. इसके दोनों में बड़ा अंतर फर्क है। We will have little knowledge about God, परमेश्वर के बारे में भले ही हमें थोड़ा सा ही ज्ञान होगा, but we will think we have full knowledge of God. बावजूद इसके हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को खूब जानते हैं। We are always little. देखो हमेशा हम छोटे हैं, God is mighty. परमेश्वर सामर्थी है, He is an almighty वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is a soon coming judge. और शीघ्र आने वाला न्यायाधीश है। He is a righteous God. वो धर्मी परमेश्वर है, A righteous God will bring justice. और धर्मी परमेश्वर न्याय लेकर आते हैं। If he doesn't bring the justice, अगर वो न्याय लेकर ना आए तो how can he be called righteous? उसे कैसे धर्मी कहा जा सकता He है? is a righteous God and he brings judgment. वो धर्मी परमेश्वर है और न्याय लेकर आता है। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, as we were studying about the rich man and the beggar Lazarus, और जैसे धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी पढ़ रहे थे हम, and now this rich man opened his eyes in the hell. अब अधोलोक में पड़े इस मनुष्य धनवान ने आंखें खोली, There is no water there. वहां कोई पानी नहीं था, He was thirsty. वो प्यासा था, In the fire, आग में, तपन आग में, one drop of water he was crying for. एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। And now he says, और अब वो कहता है, Father Abraham, हे पिता अब्राहम, send Lazarus, लाजर को भेज, one drop of water, कि वो एक बूंद पानी pour one drop of water on my tongue, मेरे जीभ में एक बूंद पानी डालकर ठंडी करे, and that will satisfy me. और वो उससे मैं तृप्त होऊंगा। And he heard a voice. और उसने एक आवाज सुनी, There is a wall between him, हमारे और तेरे बीच में बड़ी Lazarus. खाई है, between him and Lazarus. लाजर में और धनवान मनुष्य के बीच बड़ी खाई है। There will not be any transactions there. वहां से कोई भी यहाँ, यहाँ से कोई भी वहां नहीं जा सकता था। Nothing can be exchanged. कुछ भी अदल बदल नहीं किया जा सकता था। One who is inside God लेकिन वो जो परमेश्वर के अंदर है, is filled with mercy. He is living in the mercy. और वो दया से भरा हुआ है, दया में जीवन बिता रहा है। And one who is inside the hell, और वो जो अधोलोक में पड़ा है, mercy can never be given. उस तक दया कभी नहीं पहुंची। There is a wall between these two इन places. दोनों के बीच में बड़ी खाई या बड़ी दीवार ठहराई गई। There will not be any travel between these two places. इन दोनों जगह के लोग इधर उधर आया जाया नहीं कर सकते। There is a partition. यहाँ पर एक विभाजन है, There is a partition बड़ी खाई है, because क्योंकि this rich man यह धनवान मनुष्य is in the judgment of God. परमेश्वर के दंड में आ चुका है। And the beggar Lazarus निर्धन लाजर is in the mercy of God. परमेश्वर की दया में आया है। And he says, और वो कहता है, now the rich man says, अब वो धनवान मनुष्य कहता है, send somebody, किसी को भेजे, send Lazarus, लाजर को भेज, let him talk to my brothers, कि वो जाए मेरे भाइयों से बात करे, let him tell them that there is a partition
ताकि वो जाकर के उन्हें बताए कि यहाँ पर एक विभाजन है। We cannot obtain mercy in the hell. नरक में परमेश्वर की दया नहीं पा सकते। Only when we are alive we can get mercy. जे केवल तब जब हम जिंदा है तभी दया मिल जाती है। We will receive mercy only when we are alive. जब हम जिंदा हैं तब ही दया पा सकेंगे। And he heard a voice और उसने एक आवाज सुना which says, जो ये कह रहा था, there are prophets for them to tell. भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है उन्हें बताने, There are prophets to tell to your brothers. तेरे भाइयों को बताने के लिए नबी है, भविष्यवक्ता है। Then the rich man said, और धनवान मनुष्य ने कहा, if somebody अगर यदि कोई who is raised from the dead, मुर्दों में से जी उठकर if he goes and tell, अब वह जाकर उन्हें बताए तो they will believe it. तब वो विश्वास कर लेंगे। And God said, और परमेश्वर ने कहा, if they are not listening to the prophets, अगर वो भविष्यवक्ताओं की नहीं सुन रहे, how will they listen to the people who are raised from the dead? लेकिन मरे हुओं में से उठकर कोई जाएगा तो कैसे उनकी सुनेगा। Entire Bible speaks about Jesus. संपूर्ण बाइबल यीशु के बारे में ही बात करती है। All the prophets spoke about Jesus. सारे नबियों ने यीशु के बारे में ही कहा है। They spoke only about Jesus. केवल यीशु के बारे में कहते थे। Their thirst was Jesus. उनकी प्यास यीशु थी। What they have gained is Jesus. जो क्या पाया उन्होंने, यीशु पाया। Their knowledge is Jesus. उनका ज्ञान यीशु है। Their infilling was Jesus. उनका भर दिए जाना यीशु से है। Jesus became their bread. यीशु उनकी रोटी बन गया। They ate Jesus. उन्होंने यीशु को खाया, They drank Jesus. यीशु को पिया, They spoke about Jesus. यीशु के बारे में बातें की। Oh, what a mighty thing it was. क्या सामर्थ्य बातें थी वो। Every prophet's life reflects the life of Jesus. हर एक भविष्यवक्ता का जीवन यीशु मसीह के जीवन को दर्शाता है। And now the Bible says, और अब बाइबल ये कहती है, in Jude, यहूदा की पत्री में the Bible says like this. बाइबल में यूं लिखा है, Enoch, हनोक। let us read the verse. आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। Verse 14. 14 वचन। And Enoch also, seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। Now, अब the Bible says, बाइबल यूं कहती है, what did Enoch speak? हनोक ने ऐसा क्या कहा? In the Old Testament, वो भी पुराने वाचा में, in the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में it is written Enoch walked with God. लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। Now it is written in the book of Jude, अब यहूदा की पत्री में भी लिखा है, which is right before the book of Revelation. जो बिल्कुल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले रखा है। Now this, there is another warning, another caution. यहाँ पर भी एक और सावधानी, एक और सतर्कता, एक और चेतावनी। Enoch, who is seventh from Adam, हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी का था, and now he prophesied about Jesus. उसने यीशु के बारे में भविष्यवाणी की। He prophesied about the coming of Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में उसने तब नबूवत की थी, and said he will come with the saints. और लिखा है कि वो अपने पवित्रों के साथ आएगा। He will come with the 10,000s of his saints. अपने लाखों लाख पवित्रों के साथ आएगा। Jesus is coming. यीशु आ रहा है। It is 100% true and certain. और 100% सच है और दृढ़ है। Either you like it or not, आपको अच्छा लगे या ना लगे, you want it or not, आप चाहे या ना चाहे, you need it or not, आपको जरूरत हो या ना हो, his coming is 100% certain. और उसका आगमन 100% निश्चित है। He will come with the 10,000s of his saints. वो अपने लाखों लाख पवित्रों के साथ आएगा। Why is he coming? क्यों आ रहा है वो? What is Enoch saying? हनोक क्या कह रहे हैं? The Lord will come प्रभु आएगा with the 10,000s of his saints लाखों लाख पवित्रों के साथ आएगा to execute judgment. कि दंड दे सके, To execute judgment. न्याय और दंड दे सके। There is another caution coming to us. हमारे लिए तो एक और चेतावनी ऐसी आ रही है। Now it says now, लिखा है अब the Lord is going to come to judge
the people, प्रभु आ रहा है अपने लोगों का न्याय करने के to लिए, judge the ungodly. अब भक्तिहीनों को का न्याय करने। He walked with God. Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, And now he started talking about Jesus. और अब देखो वो यीशु के बारे में बात करने लग गया। Now, what is written there in the book of Luke? लूका की पुस्तक में क्या लिखा है? In the gospel according to Luke, लूका के अनुसार जो सुसमाचार है, it was informed to the rich man. धनवान मनुष्य को बताया गया There था, are prophets to speak the people who are living. और जो लोग जीवित हैं उन लोगों से बताने के लिए भविष्यवक्ता लोग थे। If they don't listen to the prophets, अगर भविष्यवक्ताओं की बातों कोई नहीं सुना, how will they listen to the one who is raised from the dead? तो फिर मरे हुए में से जी उठने वाले की कैसे सुनेंगे वो लोग? How will they listen? कैसे मानेंगे? Every prophet spoke about Jesus. हर एक भविष्यवक्ता ने यीशु के बारे में तो कहा They था। cherished Jesus. उन्होंने यीशु का नाम ऊंचा उठाया, Oh, they loved Jesus. यीशु से प्रेम किया। Jesus was their pleasure. यीशु ही उनका सुख का मूल था। They were hungry for Jesus. यीशु के लिए भूखे थे। Everything is about Jesus. उनके लिए तो सब कुछ यीशु के बारे में था। Now Enoch spoke to us and said, अब हनोक ने कहकर हमें बताया, our Lord Jesus is going to come to execute judgment हमारा प्रभु आने वाला है न्याय दंड देने के लिए, upon all the ungodly people. सारे भक्तिहीन लोगों का न्याय। Now, why is the rich man in the hell? अब ये धनवान मनुष्य क्यों अधोलोक में है? He was ungodly. क्योंकि वो भक्तिहीन था, He was not godly. वो भक्ति नहीं करता था, No godly life. कोई भक्ति पूर्ण जीवन नहीं No था, thirst for God. परमेश्वर के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्यास नहीं, No hunger for God. परमेश्वर के लिए बिल्कुल भूख नहीं, Happy with the things what he is having. जो कुछ है उसी में संतुष्ट। We must thirst for God every day. हर रोज परमेश्वर के लिए हमें प्यासे रहना है। Jesus said, यीशु ने कहा, all those who thirst come unto me, और जो भूखे प्यासे हैं मेरे पास आओ, and I will give you the living मैं waters. तुम्हें जीवन का जल दूंगा। Only Jesus can fill us with the living waters. केवल यीशु हमें जीवन के जल से भर सकते हैं। Except Jesus, nobody can fill us with the living waters. यीशु के बगैर कोई भी हमें जीवन के जल से नहीं भर In सकता। him there is life, उसमें जीवन था, and he will pour out his life into us. और वही जीवन वो हम में उंडेलेगा। And now, as the Bible says, और अब बाइबल यूं कहती है look कि what is happening to the rich man. देखो जरा धनवान मनुष्य की हालत क्या हो रही है। What was his problem when he was in this world? इस दुनिया में था तब उसकी समस्या क्या थी मालूम? Why was judgment given to him? क्यों उस पर इतना भयानक दंड आया? What is the actual judgment? वास्तविक दंड क्या है? Seizing mercy in somebody's life is called judgment. किसी के जीवन में दया का आना रुक जाना सबसे बड़ी दंड है। It is a judgment. ये दंड है There will be no more mercy. कि आगे को दया नहीं मिलेगी उसे। That is the judgment. ये दंड है, That's why he is in the hell. इस वजह से वो अधोलोक में पड़ा है। And the prophet spoke about it. और भविष्यवक्ताओं ने कहा उसके बारे That the में judge is coming. कि वो न्यायाधीश आ रहा He है, will surely judge according to our deeds. और वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें न्याय करेगा। The way we live, it will be counted in heaven. जिस तरह हम जीवन जीते हैं ना, स्वर्ग में लेखा लिया जाएगा It is उसका। calculated in heaven. स्वर्ग में उसका हिसाब लिया I जाएगा। want to tell you all today. आप सबको मैं बताता हूँ एक बात। Today you might be very free. आज भले आप बड़े स्वतंत्रता से जीवन बिता You रहे हैं, might think you are all right. आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही है आपके साथ, Every day put your life before Jesus. लेकिन हर रोज अपना जीवन यीशु के सामने रखो, And it will be exposed. रख के देखो, सब खुलासा हो The जाए। light will expose रोशनी जो है सब चीजों का खुलासा and करेगी, set right your life with God. और परमेश्वर के जीवन के द्वारा अपने जीवन को छान लो। Be godly. भक्ति पूर्ण बनो, Being a lover of Jesus. यीशु के प्रेमी बन जाओ, Seeking the mercy of God. परमेश्वर की दया को खोजो। But this rich man, लेकिन देखो इस धनवान what was he doing? क्या कर रहा था वो? Who is this ungodly? कौन है ये भक्तिहीन मनुष्य? Why is judgment coming to these people? क्यों इन लोगों पर ये दंड आ रहा है? If you read verse 16, it is written, 16 वचन पढ़ोगे तो लिखा है वहां पर, these people are murmurers. ये लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, These people are complainers, ये असंतुष्ट लोग हैं, walking after their own lust. अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले। And now it also says, और आगे ये भी लिखा है, with their mouth they speak swelling words. अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। What is happening? क्या चल रहा है? What are we doing in our life? क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में हम, Our life is filled with all this filth. कि इस तरह से की गंदगी से हमारा जीवन भरा है? Are we not complainers?
क्या हम कुड़कुड़ाते नहीं? Are we not murmurers? क्या हम शिकायत नहीं करते? Are we not satisfying the lust of the flesh? क्या शरीर की अभिलाषाओं को संतुष्ट नहीं कर Are रहे? we not living in the sin? क्या हम पाप में नहीं जीवन जी रहे हैं? And yet we are thinking and assuming that we will go to heaven. उसके बावजूद भी हम ये अनुमान लगा के बैठे हैं कि हम स्वर्ग ही जाएंगे। Jesus is the judge. यीशु मसीह वो न्यायी है। He will return to execute the judgment. वो न्याय पृथ्वी पर लाने के लिए आएगा। Those who have mercy, those who sought mercy will be inside him. जिन्होंने दया पाई है, जो दया की खोज कर रहे हैं, वो ही केवल मसीह में पाए जाएंगे। And those who have rejected, denied mercy and lived according to their own flesh, those people will be judged. जिन्होंने दया को ठुकराया, अपने मर्जी, अपने शारीरिक लालसा के मुताबिक वो जीवन जिया, वो सब उस दिन ठुकराए जाएंगे। Are you a murmurer? क्या आप एक कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति हो क्या? Do you always murmur? क्या आप हमेशा कुड़कुड़ाते हो? You think that your life is not good? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन अच्छा नहीं है? God gives good life to others, कि परमेश्वर औरों को अच्छा जीवन देता है, but your life is miserable? और आपका जीवन इतना दयनीय स्थिति में? Did the beggar Lazarus murmured? क्या वो कंगाल लाजर कुड़कुड़ाया क्या? Why my life is like this? क्यों मेरा जीवन ऐसा है? Why am I so miserable? क्यों मैं ऐसे भयंकर परिस्थिति में He हूँ? never thought about it. उसने कभी सोचा नहीं He था, never murmured about it. उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं था, He just sought the mercy of God. सिर्फ परमेश्वर की दया को खोजता था। The mercy of God. परमेश्वर की दया। Did he complain to God? क्या परमेश्वर से शिकायत की थी क्या उसने? Oh Lord, why my life is like हे this? परमेश्वर, मेरी दया क्यों ऐसी दयनीय स्थिति में This है? rich man is not bothered about ये me. धनवान को मेरी फिक्र क्यों नहीं है? Are you complaining? क्या ऐसी कोई शिकायत में है Are आप? you a complainer? क्या आप शिकायत करता है? Are you living after your own lust? क्या अपने अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं आप? The rich man, he wanted everything beautiful in his life. वो धनवान मनुष्य तो अपने जीवन में सब कुछ सुंदर चाहता था। A little suffering, people can't take it. थोड़ा सा भी दुख आए, परेशानी आए, लोग झेल नहीं They पाते say, हैं। oh, I rebuke the suffering. ओ कहते हैं, इस दुख को मैं डांटता हूँ। In suffering, दुख में if you are tried in the suffering, अगर दुख में परखे गए हो, we will come out as a pure gold. आप शुद्ध सोना बनकर We निकलोगे will come out in purity and holiness. और शुद्धता और पवित्रता में बाहर निकलोगे। Today, leave everything. आज वो सारी बातें छोड़कर Jesus is coming to execute the judgment. ये ध्यान दो कि यीशु मसीह पृथ्वी पर न्याय दंड लाने के लिए आ रहा He है। will surely execute the judgment. वो निश्चित ही दंड लाएगा इस पृथ्वी पर। Let us come out of all these fleshy works, आओ हम सारी ये शारीरिक चीजों से निकल आए बाहर, just like that Lazarus. और बिल्कुल उस लाजर की तरह। Let us seek the mercy of God. आओ हम परमेश्वर की दया खोजें, However it is, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। let me be lost to everything, O God. प्रभु, चाहे मुझे सब नुकसान उठाना पड़े तो चलेगा, The more I lose, the more I seek you. क्योंकि जितना ज्यादा मेरा नुकसान हो रहा है उतना ज्यादा मैं तुझे खोज रहा हूँ। My desire is in you, O God. क्योंकि मेरी चाहतें तुझ में है प्रभु। Everything is you, Jesus. मेरे लिए तो सब कुछ यीशु तू ही है। Become a lover of Jesus. यीशु के प्रेमी बन जाओ। Oh, love Jesus. यीशु से प्रेम करो। As you love, you will know more about Jesus. जितना ज्यादा उससे प्रेम करोगे उतना ज्यादा यीशु को And the जानोगे। more you know him, जितना ज्यादा उसे जानोगे the more beautiful he is. उतना खूबसूरत आपको दिखेगा He वो। is a beautiful Jesus. खूबसूरत है वो यीशु। He is the rose of Sharon. शारोन का गुलाब है He वो। is the lily of the valley. वो तराइयों का सोसन फूल, Bright and morning star. भोर को चमकने वाला तारा, Fairest of the 10,000s. 10,000 में वो भी खूबसूरत He is God. परमेश्वर है In वो। all the saints who are coming, thousands along with him, who is the beautiful out of all? Jesus. इन लाखों लाख पवित्र जो संत आ रहे हैं उनमें सबसे खूबसूरत कौन है? यीशु है। And all those saints, they longed for Jesus. और वो सारे पवित्र लोग यीशु को चाहते थे देखना। They have Jesus inside them. उनके अंदर यीशु है They are inside Jesus. और वे यीशु के अंदर हैं। They are in the divine union with God. परमेश्वर के साथ ईश्वरीय मिलन में है। Those who is in the divine union with God, जो परमेश्वर के साथ उसके ईश्वरीय मिलन में सहजता से है, they will go back into the bosom of the Father. वो ही तो पिता की गोद में जाएंगे। Come out of all your fleshy things. अपने शारीरिक कामों से बाहर निकलो, Enjoy Jesus. यीशु का आनंद लो ना।
Take pleasure in Jesus. यीशु में सुख पाओ, Become one with Jesus. यीशु के साथ एक हो जाओ, Thirst for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो He जाओ। will pour out the love of Father into your ओ hearts. पिता का प्रेम आपके हृदय में वो उंडेलेगा। What a joy it is. क्या ही आनंद की बात Let है। the living waters flow inside you. ओ जीवन का जल आपके अंदर बहने दो। However miserable the life is, चाहे दयनीय परिस्थिति कितनी भी क्यों ना हो आपका our जीवन, joy must become Jesus. और हमारा आनंद यीशु ही होना चाहिए। Oh, let the Holy Spirit pour the love of the Father into our hearts. ओ पवित्र आत्मा को परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में उंडेलने दो। I pray that the Holy Spirit will pour the love of the Father into your hearts. मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा पिता का प्रेम आपके हृदय में उंडेले। As you listen to this message, जैसे जैसे आप ये संदेश सुन रहे you हैं, also receive the mercy of God. आप भी परमेश्वर की दया को पाएं। As long as you live, जब तक आप जीवित हैं, seek the mercy of God. परमेश्वर की दया को खोजें। Seek the mercy of God. परमेश्वर की दया खोजें। Our God is rich in mercy. हमारा परमेश्वर जो दया का धनी है। We see people who are rich in money, rich in gold. हम देखते हैं लोग पैसे में, सोने रुपए में धनवान हैं। Tell everyone, उन सबको बताइए, my Father, my heavenly Father is rich in mercy, मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता दया का धनी है, and He will give me mercy. और वो मुझे दया पे दया देगा। What are you gaining in this world? इस दुनिया में क्या पा रहे हैं आप? The mercy of God. परमेश्वर की दया, The mercy of God. परमेश्वर की दया, The mercy of God. परमेश्वर की दया। May the Lord pour out His mercy into your वो life. परमेश्वर अपनी दया आपके जीवन में उंडेले। You receive the mercy of आप God. परमेश्वर की दया को पाइए, Seek the mercy of God. परमेश्वर की दया खोजिए, Become a lover of Jesus. यीशु के प्रेमी बन I जाओ। want to end this parable here. यही पर इस दृष्टांत को मैं समाप्त करता You हूँ। become like beggar Lazarus, आप भले कंगाल लाजर की तरह बन जाओ, चलेगा, seeking the mercy of जो God, परमेश्वर की दया को खोजता था। seeking the love of Jesus. Become a lover of Jesus. यीशु के प्रेम को खोजने वाला, यीशु का प्रेमी बन जाओ। May the Holy Spirit pour the love of the Father into your hearts. ओ पवित्र आत्मा पिता का प्रेम आपके हृदय में उंडेलते जाए, May you be filled with the living waters, और आप जीवन के जल से भर जाएं, and out of you shall flow the river of living और waters. आपके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहे। Amen. आमेन। Let us close our eyes and pray. आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, Father, thank you for this word. पिता आपके इस वचन के लिए धन्यवाद। I pray for every person who is listening to this message, इस संदेश को सुनने वाले सारे व्यक्ति के लिए मैं दुआ करता हूँ। for every sister and every brother. हर एक भाइयों और बहनों के लिए, Let them become lovers of Jesus. और उन्हें यीशु के प्रेमी बन जाने दो। Let them seek the mercy of God. परमेश्वर की दया खोजने वाले बन जाएं। Your mercy is what satisfies the soul, O God. और आपकी दया ही है जो हमारे प्राणों को संतुष्ट करती है। Fill them with the living waters. जीवन के जल से उन्हें भर दे You पिता। said, come unto me. तूने कहा मेरे पास आओ, Come unto me. मेरे पास आओ। What a beautiful Jesus you are. क्या खूबसूरत यीशु है आप, You always calls us. कि वो हमेशा बुलाता I है। am coming, O God. मैं आ रहा हूँ प्रभु, We are coming, O God. हमारे परमेश्वर, Fill with the living हमें waters. जीवन के जलों से भर दे, Fill with the living waters. जीवन के जलों से भर Let दे। every person who is hearing this message, हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहे हैं, let them receive the living waters. वो जीवन के जल को ग्रहण करें, And out of their belly flow the river of living और उनके waters. हृदयों से जीवन की जल की नदियां बहने दे। Thank you, Master, for giving this mercy and धन्यवाद grace. स्वामी ये संदेश देने के लिए। We all love you, हम आपसे प्रेम करते सब, and we will become lovers of Jesus. और हम यीशु के प्रेमी बन जाएंगे। Let Christ Jesus be our joy and our pleasure. और मसीह यीशु हमारा आनंद और हमारा सुख बन जाए। Grant us our request, O God. प्रभु हमारे निवेदनों का उत्तर दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन, Amen and आमेन, आमेन।